عرب علی خان میں 2 روز قبل اغوا ہونے والے نوجوان کی لاش کھیتوں سے برآمد۔ نوجوان حافظ ندیم ہفتہ کے روز گھر سے لاپتہ ہوا۔ مقتول حافظ ندیم 2 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ منڈی بہاؤالدین میں دودھ کے نام پر سفید محلول سپلائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی نے کلیکشن سینٹرز پر چھاپے مار کر 870 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر لیا۔ جعلی دودھ بنانے والا مصر صحت 125 کلو پاؤڈر اور ڈرم بھی ضبط کر لیا گیا۔ پاک پتن پولیس کی کارروائی، خاتون منشیات فروش سمیت 3 ملزم گرفتار۔ مختلف برانڈ کی ولایتی شراب کی 68 بوتلیں برآمد کر لی گئی۔ ایس ایچ او عاشق عابد کی مدیت میں مقدمہ درج۔ صدر گوگیرا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف مہم کا آغاز۔ 4 منشیات فروشوں سے 14 کلو سے زائد چرس برآمد۔ شراب بنانے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان اور میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین، آپ کو بتائیں کوٹلہ عرب علی خان میں 2 روز قبل اغوا ہونے والے نوجوان کی لاش کھیتوں سے برآمد کر لی گئی۔ نوجوان حافظ ندیم ہفتہ کے روز گھر سے لاپتہ ہوا، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آج اہل علاقہ کے اطلاع پر نوجوان کی لاش برآمد کر لی گئی۔ جی بالکل، لواحقین کا کہنا ہے کہ مقتول حافظ ندیم 2 بچوں کا باپ تھا۔ حافظ ندیم کو موبائل پر کال کر کے گھر سے بلا کر اغوا کر لیا گیا اور کھیتوں میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ مدعی مقدمے کا کہنا تھا کہ مقتول حافظ ندیم کسی سے کوئی دشمنی یا کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں رکھتا تھا۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ حجرہ شاہ مقیم میں دن دہاڑے ڈکیتی مزاحمت پر تاجر کو قتل کر دیا گیا۔ سبزی منڈی کے قریب عمران ٹریڈرز میں 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گھس کر ڈکیتی کی واردات کی۔ ڈاکوؤں نے عابد نامی تاجر کی مزاحمت پر فائرنگ کر دی، جس سے تاجر موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ڈاکو ہزاروں روپے نقدی رقم لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کا آغاز کر دیا۔ دودھا پور سٹی میں 2 بچے نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ ڈوبنے والوں میں تیمور علی اور ظفر منکی دونوں بھائی ہیں۔ ریسکیو کے مطابق دونوں بھائی نہر میں نہا رہے تھے کہ اچانک پانی کی تیز لہروں کی نظر ہو گئے۔ بچوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری، تاہم ابھی تک کسی بھی بچے کی نعش نہیں مل سکی۔ ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی کارروائی سے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن نے ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 5 آئل ٹینکرز کو اپنی حراست میں لے لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں راجہ بلوچ کی رپورٹ میں۔ کلیکٹر آف کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن نے ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دوران پیٹرولنگ اینٹی اسمگلنگ کے موبائل اسکواڈ نے بند مراد ہمدرد یونیورسٹی کے قریب کچے کے علاقے سے بلوچستان سے اندرون سندھ اسمگل کیے جانے والے 5 آئل ٹینکرز کو روک کر 1,11,286 لیٹر اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل، جس کی مالیت
3,45,55,552 रुपए है कब्जा में लेकर जब्त किए हैं। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर्स पर सवार 12 अफराद को कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके बाजाब्ता गिरफ्तार किया गया है और मुलजमान का मिजाज अदालत से रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। स्मगलिंग में इस्तेमाल ऑयल टैंकर जिनकी मालियत 2,80,00,000 रुपए है को भी जब्त किया गया है। जब्त शुदा डीजल और टैंकर्स की कुल मालियत 6,25,55,552 रुपए है। कैमरा टीम के नाजरीन आपको बताएं कि रेनाला फूड में खातून पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। लवाहिकीन इंसाफ के लिए दरबदर, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी इमरान की इस खसूसी रिपोर्ट में। गरीब खातून नसरीन बीबी का उनके रिश्तेदारों का वहशियाना तशद्दुद डंडों सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। नसरीन बीबी ने मेडिकल करवा कर थाना सदर रेनाला फौज में दरख्वास्त भी गुजारी, लेकिन पुलिस मुल्जिमान के साथ साजबाज हो गई और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकारी। खातून उसूल इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खातून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरा नाम नसरीन बीबी है, मैं 18 वन ਦੀ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਸਵੈਦ मैं अपनी जान दे दूंगी। नसरीन बीबी ने कहा, अगर एसएचओ थाना सदर ने मुकदमा दर्ज न किया तो मैं अपने बच्चों समेत थाना सदर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओकाड़ा की इमरजेंसी में पुलिस एहलकारों की तरफ से लेडी डॉक्टर को हिरासत करने और डीएमएस पर कातिलाना हमले का मुकदमा थाना ए डिवीजन में दर्ज कर लिया गया। ओकाड़ा के इलाके गशकोरिया का रिहायशी 10 साल बच्चा फैजान थ्रेशर मशीन की जद में आ गया, जिसे तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इस दौरान बच्चे के साथ आया हुआ इस्लामाबाद पुलिस का एएसआई शाहिद और उसका साथी मुबैना तौर पर बच्चे के लवाहिकीन के साथ तैश में आ गए और लेडी डॉक्टर खुशबख्त को हिरासा किया। डीएमएस डॉक्टर अकबर अली भुट्टा ने मामले को हल करने की कोशिश की तो पुलिस एहलकारों ने डीएमएस पर कातिलाना हमला कर दिया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। थाना ए डिवीजन पुलिस ने डॉक्टर अकबर अली भुट्टा की मुद्दत में 2 पुलिस एहलकारों समेत नामालूम अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दूध के नाम पर सफेद जाली महलोल सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। महकमा फूड अथॉरिटी की डेयरी सेफ्टी टीमों की शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी, कलेक्शन सेंटर्स पर छापे मारकर 870 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर लिया। जाली दूध बनाने वाले मुझसे सेहत 125 किलो पाउडर और ड्रम भी जब्त। महकमा फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली दूध पाउडर और पानी की मिलावट से तैयार किया गया था। दूध के टेस्ट में कुदरती फैट की कमी और पानी की मिलावट पाई गई। जाली तैयार दूध को मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने वलायती शराब पाकपतन मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेडी मनशियात फरोश समेत 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में शराब बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर पुलिस पाकपतन ने दीपालपुर रोड पर गांव 17 एसपी के करीब मशकूक कार को रोककर लेडी मनशियात फरोश समेत 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनसे मुख्तलिफ ब्रांड्स की वलायती शराब की 68 बोतलें शराब बरामद कर ली। जी नाजरीन, आपको अपडेट देते चलें कि पुलिस ने वलायती शराब पाकपतन मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेडी मनशियात फरोश समेत 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। भारी मिकदार में शराब बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर पुलिस पाकपतन ने दीपालपुर रोड पर गांव 17 एसपी के करीब मशकूक कार को रोककर लेडी मनशियात फरोश समेत 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनसे मुख्तलिफ ब्रांड की वलायती शराब की 68 बोतलें बरामद कर ली। एसएचओ आशिक आबिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
बन्नू में SHO थाना मेरियान अल्ताफ वजीर की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में इलाके के उमायदीन ने पुलिस को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की और खुशहाली पर किसी के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। SHO थाना मेरियान अल्ताफ वजीर और एडिशनल SHO हिकमतुल्लाह वजीर ने इलाके के उमायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद माशरे का नासूर और उनकी सरकोबी के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। अमन और अमान की बहाली तक समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कहा कि हमायदीन के ताउन से इलाके को मुनशियात की लानत से पाक करके ही दम लेंगे। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान की हिदायत पर बसिस्ला चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमन और अमान को कायम रखने के लिए पुलिस ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मुरत्तिब कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 2100 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकारान ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिनमें 6 DSPs, 11 इंस्पेक्टर, 130 सब इंस्पेक्टर, 234 ASI, 39 हेड कांस्टेबल और 1543 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा 136 लेडीज पुलिस अफसरान और एहलकारान, स्पेशल फोर्स और रिजर्व फोर्स भी सिक्योरिटी का हिस्सा होंगे। जिलाई पुलिस, एलिट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, खवातीन मोटरसाइकिल स्क्वाड, फाल्कन फोर्स की टीमें गश्त के लिए मामूर की गई हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रूट्स पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। सदर गोगेरा पुलिस की तरफ से मुनशियात फरोशों के खिलाफ जामिया मुहिम का आगाज। गुज़िश्ता 10 दिनों में 4 मुनशियात फरोशों से 14 किलो से ज्यादा चर्स और शराब बनाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजीद जानते हैं सदर गोगेरा से मियां असगर की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर RPO साहिवाल महबूब रशीद और DPO ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान राना की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ एक जामे मुहिम का आगाज किया गया। गुज़िश्ता 10 दिनों में मौजा फतवाना से 2 मंशियात फरोश, 1 मौजा हमाद के, 1 बताली जीडी से और 1 को फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। 14 किलो से ज्यादा चरस और अफीम बरामद कर ली गई। इलाके से शराब बनाने वाले 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरी जान मखसूस मुकामात जहां मंशियात के आदि अफराद मामूल के मुताबिक नशे के लिए जमा होते थे, गुगेरा पुलिस ने मुकामी लोगों के ताउन से क्लियर कराया। दरबार बाबा बूटे शाह, दरबार मीरन शाह, दरबार मालन शाह और कब्रस्तानों को नशे के आदि अफराद से खाली करवाकर गोगेरा पुलिस ने इलाज के लिए अस्पतालों में भेज दिया। स्कूलों और कॉलेजों में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई। DPO उकाड़ा की जानिब से नंबरदार, ताजर, वकला, डॉक्टर, असातिज़ा और उलमा कराम को कहा गया है कि वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर के SHO लियाकत अब्बास लोगारी का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनाम जमाना शराब फरोश पप्पू माल्हे की शराब की भट्टी पकड़ी गई। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे शेख जरीफ नवाज की इस रिपोर्ट में। सीनियर कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मार शाहजमान लक की हिदायत पर कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मुश्ताक अहमद टिवाना की सुपरविजन में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर के SHO दफेदार लियाकत अब्बास लगारी ने अपनी टीम साजिद खान लगारी, मोहम्मद दानियाल और जावेद के हमरा समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किए। पहले शराब की भट्टी पर छापा मारकर आशिक हुसैन मोले को शराब और आलात कशीदा समेत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया था। आज दूसरी कार्रवाई में बदनामी जमाना शराब फरोश पप्पू मोले की शराब की भट्टी पर छापा मारकर पप्पू को शराब और आलात कशीदा समेत गिरफ्तार करके मुकदमे का इंदराज किया है। इस हवाले से लियाकत अब्बास लगारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सीनियर कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मार शाहजमान लक की हिदायत और कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मुश्ताक अहमद टिवाना की सुपरविजन में हमने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किया है और इसी तरह क्रैकडाउन जारी रहेगा। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस
की हदूद में जो है ना जराइम का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और समाज जो दुश्मन अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इसी तरह माँ के दूध की अहमियत पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डॉक्टर अता वगैरह ने लेक्चर देते हुए बताया कि माँ का दूध फर्स्ट वैक्सीन के तौर पर भी काम करता है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि कसूर बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में माँ के दूध की अहमियत पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर अता वगैरह ने लेक्चर देते हुए बताया कि माँ का दूध फर्स्ट वैक्सीन के तौर पर भी काम करता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने करोड़ों नेमतों से माँ के दूध में ताकत बख्शी है। माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर काम करता है। मुकर्रीन ने तमाम वालिदैन से बच्चों को माँ का दूध पिलाने की अपील की। सिंध से जैकबाबाद के रास्ते शंबे शाह चेक पोस्ट से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से अफगानिस्तान चीनी की स्मगलिंग जारी। इंतजामिया चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम में नाकाम। स्मगलर्स सिंध से बलूचिस्तान चीनी स्मगल करके रोजाना करोड़ों रुपए कमाने लगे। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि अगर ऐसे ही चीनी की स्मगलिंग जारी रही तो चीनी की फी किलो कीमत 240 रुपए तक जा सकती है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सिंध से जैकबाबाद के रास्ते चेक पोस्ट से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से अफगानिस्तान चीनी की स्मगलिंग जारी है। इंतजामिया चीनी के स्मगलिंग की रोकथाम में नाकाम हो गई है। स्मगलर सिंध से बलूचिस्तान चीनी स्मगल करके रोजाना करोड़ों रुपए कमाने लगे। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि अगर ऐसे ही चीनी की स्मगलिंग जारी रही तो चीनी की फी किलो कीमत 240 रुपए तक जा सकती है। भेरा टीएचक्यू अस्पताल में चेकअप के लिए आने वाले मरीज को मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाकर उसका बासु मासूर कर दिया गया। 2 माह गुजरने के बावजूद मुतासरा शख्स को इंसाफ न मिला। 2 बच्चों का बाप तोकीर अब्बास शुगर का मरीज है। 2 माह कबल तबीयत खराब होने पर टीएचक्यू अस्पताल चेकअप करवाने गया तो वहां पर मौजूद नर्स ने इंजेक्शन लगाया जिससे मेहनत कश का बासु काम करना छोड़ गया। तोकीर अब्बास के भाई ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने एमएस को दरख्वास्त दी। 2 माह गुजरने के बावजूद कार्रवाई की गई और ना इलाज करवाया गया। तोकीर अब्बास के भाई ने वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सिंध बार कौंसिल की कॉल पर डहरकी के वकला ने भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर डहरकी बार के सदर जाम अब्दुल फतेह, एडवोकेट गुलाम रसूल महर, एडवोकेट मेहताब चाचड़, एडवोकेट फरमान अली शर और दीगर ने कहा कि महंगाई से आवाम का जीना महाल हो गया है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब तबका फाका कशी काटने पर मजबूर है। बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सिंध बार कौंसिल की कॉल पर डहरकी के वकला ने भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर डहरकी बार के सदर जाम अब्दुल फताह, एडवोकेट गुलाम रसूल महर, एडवोकेट मेहताब चाचड़, एडवोकेट फरमान अली शर और दीगर ने कहा कि महंगाई से अवाम का जीना महाल हो गया है। दूसरी जानिब फतेह जंग पंजाब हाईवे पेट्रोल ने माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक माह अगस्त में पीएचपी ने शहरात पर बजरिया ई पुलिस पोस्ट ऐप 17,92,414 अफराद और 10,438 गाड़ियों को चेक किया। पंजाब भर की शहरात पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 3,56,762 ई चालान किए गए। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र गुज़िश्ता माह पीएचपी ने 8,585 ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए। पीएचपी ने गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर 835 मुसाफिर बरादर गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की।
482 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया, 77 गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाया। मुख्तलिफ हादसात में मजरूब होने वाले 175 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के अहदेदारान मोहम्मद एजाज मलिक, जनरल सेक्रेटरी एप्समा शुमाली पंजाब मंसूर शाह, जनरल सेक्रेटरी जिला कलागंज हाजी तोकीर अहमद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान ने अपने मुतालबात पेश करते हुए कहा कि बिजली के बिलों पर प्राइवेट स्कूल्स के लिए कमर्शियल टैरिफ खत्म करके डोमेस्टिक टैरिफ बहाल किया जाए। प्राइवेट स्कूल्स पर साइन बोर्ड और दीगर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस खत्म करने का भी मुतालबा किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि बिजली के हवाले से स्लेब रेट्स का जालिमाना सिस्टम खत्म किया जाए। बिजली अगर वाफर मिकदार में है तो सस्ती बेचकर IPPs के वाजिबात अदा किए जाए और स्कूलों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए आसान शराइत पर कर्जे और सब्सिडी भी दी जाए। दूसरी जानिब सहरा थरपारकर इस्लाम कोर्ट से आटा सस्ता करो, पैदल मार्च करने वाला बुजुर्ग शख्स डिग्री पहुंच गया। हाथ में रोटी उठाए ये शख्स आटा सस्ता करो के नारे लगाता रहा। पैदल एहतजाजी मार्च करता हुआ डिग्री पहुंचने वाले राजा मेघवार ने डिग्री में शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जिसके बायस मजदूर दिहाड़ीदार तबका फाका कुशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं लेकिन हुक्मरान और सरमायादारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। राजा मेघवाड़ का कहना है कि सहराए थरपारकर इस्लाम कोर्ट से ये मुतालबा लेकर पैदल निकला हूं, खुदा के लिए आटा सस्ता करे। जी नाजरीन, एक बार फिर आपको अपडेट देते चलें कि सहराए थरपारकर इस्लाम कोर्ट से आटा सस्ता करो, पैदल मार्च करने वाला बुजुर्ग शख्स डिग्री पहुंच गया। हाथ में रोटी उठाए यह शख्स आटा सस्ता करो के नारे लगाता रहा। पैदल एहतजाजी मार्च करता हुआ डिग्री पहुंचने वाला राजा मेघवाड़ ने डिग्री में शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि फाजिलपुर दानिश स्कूल में दर्जनों तलबा और तलबात की अचानक हालत बिगड़ गई। स्कूल इंतजामिया की तरफ से बच्चों को बजाय अस्पताल भेजने के घरों को भेज दिया गया। वालिदैन सरापा एहतजाज बन गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे यूसुफ रजा। फाजिलपुर दानिश स्कूल में 100 से ज्यादा तलबा और तलबात की हालत बिगड़ गई। स्कूल इंतजामिया की तरफ से बच्चों को बजाय अस्पताल भेजने के घरों को भेज दिया गया। बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बच्चों के बुरसा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रात की बीमारी से बच्ची बेहोश पड़ी है। इंतजामिया की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि नाकिस खाना और बगैर फिल्टर पानी बच्चों को पिलाया गया, जिसकी वजह से बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बुरसा ने मजीद कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बच्ची सारी दाने स्कूल पर जिन्हें रात तकरीबन तबीयत खराब थी, इन्हें तो क्या नहीं दसिया। सवेरे तकरीबन 10 बजे इन्हें को दसे कि भी उनकी तबीयत बच्ची का तबीयत खराब है, जो दिन वाले अस समझे कि शायद नॉर्मली हो सी। अस वहाँ तो गिना को तकरीबन 10 बजे उठा वो बिल्कुल बेहोश है। 2 बच्चों को चाह के हैं अस लोगों को उठा चाह के डॉक्टर इरफान साहब भी क्लिनिक से आए हूँ। तकरीबन 10 बजे ड्रिपल लगे पे मैडिसन भी इस्तेमाल नहीं पे, उनकी कंडीशन हाली तक बिल्कुल लो है, होश हाली तक क्या नहीं आया। तो नाल वाले दूजे बच्चे को पूछे थे उन्हें साथ जड़े दिखे सको आलू को देखें पानी बिल्कुल गर्म है पीवन लगे नहीं, वो गर्म पानी पीवे पे फिल्टर उन्हें खराब है, जिस वजह को बच्चा ढेर सारे बीमार हैं। अस दूजी बच्ची को चावल दूता हूँ उतना भी ढेर सारे बच्चा ढेर सारे वालदैन है खड़े जोर से परेशान हैं कि भी बच्चे सारे बीमार हैं और हर बंदा तकरीबन हर बच्ची को तकरीबन कोई 100 के करीब है इधर बच्ची बीमार है। दूसरी तरफ मीडिया पर बात आने पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर फौरी अस्पताल फाजिलपुर पहुंच गए। बेहोश बच्ची को DHQ शिफ्ट कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मामले की तहकीकात कराई जा रही हैं, जल्द आगाह करेंगे। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, कोहिनूर न्यूज़, फाजिल। रिपोर्ट आपने मुलायसा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहदाद कोर्ट में महकमा इरिगेशन के मुलाजमीन का नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं।
آل پاکستان کلرک یونین کے عہدیداران نے الزام عائد کیا کہ کلرک نسیم لاڑک کا 2 سال پہلے تبادلہ نارتھرن ڈویژن حیدرآباد ہوا تھا، مگر دفتر کا ریکارڈ اپنے ساتھ ہی لے گیا، جبکہ ریکارڈ اپنی تحویل میں رکھنا غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نسیم لاڑک ریکارڈ طلبی پر افسروں کو بلیک میل اور دھمکیاں دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ترقیاتی فنڈز میں سارا ملبہ ہم پر نہ ڈال دیا جائے۔ مظاہرین نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ جی بالکل ناظرین، ایک بار پھر اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ شہداد کوٹ میں محکمہ اریگیشن کے ملازمین کا نابا سلوک کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ آل پاکستان کلرک یونین کے عہدیداران نے الزام عائد کیا کہ کلرک نسیم لاڑک کا 2 سال پہلے تبادلہ نارتھرن ڈویژن حیدرآباد ہوا تھا، مگر دفتر کا ریکارڈ اپنے ساتھ ہی لے گئے، جبکہ ریکارڈ اپنی تحویل میں رکھنا غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نسیم لاڑک ریکارڈ طلبی پر افسروں کو بلیک میل اور دھمکیاں دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ترقیاتی فنڈز میں سارا ملبہ ہم پر نہ ڈال دیا جائے۔ مظاہرین نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ پنو عاقل کے قریب مبارک پور کا 20 سالہ طالب علم واجد علی کھوکھر سکھر سے 2 روز قبل پر اصرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ نوجوان کی عدم بازیابی پر لواحقین سراپا احتجاج بن گئے۔ باپ مصطفیٰ کھوکھر اور بھائی سجاد علی کے مطابق واجد علی پیرا میڈیکل کالج سکھر کا طالب علم ہے، ہفتے کی دوپہر 2 بجے سے لاپتہ ہے۔ واقعے کی اطلاع سکھر سی سیکشن تھانے کو دی گئی، لیکن نہ تو کوئی مقدمہ درج کیا گیا اور نہ ہی اس کی بازیابی کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شبہ ہے کہ واجد علی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ لواحقین نے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پنو عاقل کے قریب مبارک پور کا 20 سالہ طالب علم واجد علی کھوکھر سکھر سے 2 روز قبل پر اصرار طور پر لاپتہ۔ نوجوان کی عدم بازیابی پر لواحقین سراپا احتجاج بن گئے۔ باپ مصطفیٰ کھوکھر اور بھائی سجاد علی کے مطابق واجد علی پیرامیڈیکل کالج سکھر کا طالب علم ہے، ہفتے کی دوپہر 2 بجے سے لاپتہ ہے۔ واقعے کی اطلاع سکھر سی سیکشن تھانے کو دی، لیکن نہ تو مقدمہ درج کیا گیا اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ حافظ آباد میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر عمر فاروق وڑائش نے کی۔ ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر محمد شفیق، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری سلطان احمد ہنشا، ڈپٹی ڈی او زمان اللہ، نذیر احمد، ملک ریاض حسین، صدر ایپکا نصر اللہ ہنشا اور دیگر نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عمر فاروق وڑائش نے کہا کہ تعلیم کا حصول دین اسلام کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان میں بھی شامل ہے۔ کوئی بھی ملک و قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کروائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے تقریبات کے انعقاد کا مقصد بھی عوام کو شعور دینا ہے کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے تعلیم کا حصول نہایت ضروری ہے۔ ملک و قوم کی ترقی کے لیے تعلیم کا حصول بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس موقع پر انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کی مناسبت سے منعقدہ سیمینار میں محکمہ لٹریسی کے اسکولوں کے بچوں نے مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ٹنڈوالا یار میں ڈاکو راج برقرار ہے۔ آئے روز چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں۔ دن دہاڑے مسلح افراد اسلحے کے زور پر شہریوں کو سرعام لوٹنے لگے۔ چند روز میں درجنوں شہری موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے۔ گزشتہ رات نامعلوم ملزمان پیٹرول پمپس کے ملازم سے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ شہری سے موٹر سائیکل بھی چھین لی۔ چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑنا پولیس کے لیے امتحان بن گیا۔ شہریوں نے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ٹنڈوالا یار میں ڈاکو راج برقرار ہے۔ آئے روز چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں۔ دن دہاڑے مسلح افراد اسلحے کے زور پر شہریوں کو سرعام لوٹنے لگے۔ چند روز میں درجنوں شہری موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ کبولا شریف کے علاقے گاؤں 205 ای بی میں ڈیرے پر سوئے ہوئے شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔
पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अशरफ अपनी ज़मीनों पे लगी टरबाइन की छत पे सोया हुआ था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मोहम्मद अशरफ मौका पर ही दम तोड़ गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दौरान डकैती डाकुओं ने उसे फायरिंग करके कत्ल किया। ताहम पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि कबूला शरीफ के इलाका गांव 205 ईबी में डेरे पर सोए हुए शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अशरफ अपनी जमीनों पर लगी टरबाइन की छत पे सोया हुआ था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर मोहम्मद अशरफ मौका पर ही दम तोड़ गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दौरान डकैती डाकुओं ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ताहम पुलिस का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि जामिया सुल्तानिया तजवीदुल कुरान जामपुर में मरकजी मिलाद कमेटी व जमात अहले सुन्नत का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में शिरकत। इलामा मोहम्मद हुसैन सुल्तानी और मेंबर अमन कमेटी कारी आबिद हुसैन की ज़ेर निगरानी इजलास में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस और महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 29वां मुश्तरका जश्न ईद मिलादुन नबी के प्रोग्रामों को हतमी शक्ल देते हुए जुलूस के रूट्स की सफाई और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम पर जोर दिया गया। तहसील और जिले के छोटे बड़े जुलूसों और प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। इस मौका पर उलमाए कराम और मुशाइख, अज़ाइम, वकला, अंजुमन ताजरान और सहाफ़ी और तमाम मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। हुजरा शाह मुकीम में रोए मुश्ताक अहमद खरल ने अपने साथियों की दावत पर जलसे में शिरकत की। मुश्ताक अहमद खरल का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हल्का की आवाम सैकड़ों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर काफिले की सूरत में रोए मुश्ताक खरल के साथ साथ रहे। रास्ते में जगह जगह रोक कर काफिले का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चौक हुजरा पहुंचने पर साथियों और अवाम की तरफ से ढोल की थाप पर भंगड़े बिटाले गए। फूलों की पत्तियों से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जी बिल्कुल नाजरीन, अपडेट देते चले कि हुजरा शाह मुकीम में राय मुश्ताक अहमद खरल ने अपने साथियों के दावत पर जलसे में शिरकत की। मुश्ताक अहमद खरल का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हल्के के अवाम सैकड़ों गाड़ियों, मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर काफिले की सूरत में राय मुश्ताक खरल के साथ साथ रहे। रास्ते में जगह जगह रोक कर काफिले का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चौक हुजरा पहुंचने पर साथियों और अवाम की तरफ से ढोल की थाप पर भंगड़े, फूलों की पत्तियां निशावर करके वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कराची के इलाके सैराब गोट स्काउट कॉलोनी में जंदोल कौमी इत्तेहाद की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जंदोल कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन हाजी हलीम खान ने खसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर अमीन की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सोराबोट में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त जंदूल कौमी इत्तेहाद के दरमियान जो है एक तो मुशावरती इजलास हुआ, एक तारुफी इजलास हुआ। इस वक्त जंदूल इत्तेहाद के जो चेयरमैन और सदर हलीम खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज एक बड़ा इजलास हुआ आपके कौमी सतह पे, तो उसमें काफ़ी मशरान ने भी शिरकत की, मुख्तलिफ इलाके के लोगों ने भी शिरकत की। क्या चीज़ इसमें तय हुई है और इस वक्त जंदूल के अवाम आपको देख रही है, उनको क्या पैगाम दोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम हमें दिया और हमारा रिपोर्ट कर रहे, बहुत शुक्रिया। असल जंदुल कौमी इत्तेहाद तो 7 माह हो गया कि जंदुल कौमी इत्तेहाद का तंजीम बना है। तकरीबन ये हमारा 23वां प्रोग्राम है कि हम कर रहे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से जंदुल कौमी इत्तेहाद कराची में जितने हमारे लोग हैं और जितने मजबूर लोग हैं, नाचार लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं। और इस बयू के वसासत से कि जब हमारे जो कराची में जितने सरमेदार लोग हैं वो लोग अपना चांदा करके फंड जमा करके जंदुल कौमी इत्तेहाद के जो गरीब लोग हैं, जो मस्किन लोग हैं, उस पे लगाते हैं। आपको पता होगा कि जंदुल कौमी इत्तेहाद के पेज से हमने 4 करोड़ रुपए के एक अस्पताल का भी ऐलान किए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैंने पिछले महीने के
18 तारीख से हमने स्टार्ट लिए। तकरीबन बहुत सारा इलाज उसमें ऐसा है कि प्रिय लोगों के लिए। और दूसरी बात, हमने 2 एम्बुलेंस भी ख़रीदा है जंदुल कौमी इत्तेहाद के लिए कि एक काम कर रहे सुराबगोट जोन पे और एक काम करते गिजरी और कुरंगी जोन पे, मंजूर कॉलोनी, गिजरी, बलोच कॉलोनी, उस जोन पे। जी बिल्कुल, इस वक्त ट्रांसपोर्ट के भी सदर थे और जंदुल कौमी इत्तेहाद के भी जो चेयरमैन थे अलीम खान साहब से हमने बात की और उनका कहना था कि समाजी और फलाही हवाले से जितने भी खिदमात अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम पेश करते रहेंगे। जी निगरान दौरे हुकूमत में नाकिस पॉलिसियों से अवामुन्नास के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन भी मुतासिर होने लगे। वज़ीराबाद में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के छोटे मुलाजमीन के तबादले दूर दराज इस्लाह में करने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। आला हुकाम से ना इंसाफी पर मबनी गैर कानूनी तबादलों के अहकामात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन में शामिल मुतासरा मुलाजमीन ने बताया कि वो कम अहदों के मुलाजमीन हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती किया गया, जो अपने अपने अज़ला में काम कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुकाम ने जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रही हैं कि निगरान दौरे हुकूमत में नाकिस पॉलिसियों से अवामुन्नास के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन भी मुतासिर होने लगे। वज़ीराबाद में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के छोटे मुलाजमीन के तबादले दूर दराज के इस्लाह में करने पर मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बन गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुल सत्तार कुंदरानी का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टंगवानी का अचानक दौरा, उसातिज़ा और अमला समेत 3 मुलाजमीन गैर हाजिर होने पर बरहमी का इज़हार। सिविल जज अब्दुल सत्तार कुंदरानी के दौरे के दौरान मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए, जबकि तलबा के लिए पंखे और पीने के पानी की सहूलियात भी ना नजर आई, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरहमी का इज़हार करते हुए सख्त हदायत जारी कर दी। नाज़रीन, आपको बताएं कि जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान मिलाद चौक इलाहाबाद के उलमाए इकराम के वफ़द ने पाकिस्तान सुन्नी फोर्स से 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के हवाले से अहम मीटिंग की। मज़ीद जानते हैं इलाहाबाद से अरशद सावल की रिपोर्ट में। हाजी बहुत शुक्रिया। मीटिंग की सदारत हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अली बरकाती साहब और प्रोफेसर हाफिज कारी मोहम्मद आसिफ सियालवी साहब और हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अबू बकर यासर अतारी साहब और हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद काशिफ रिजवी साहब ने की। मीटिंग की सरपरस्ती राणा मोहम्मद सलीम अख्तर सरपरस्ती आला पाकिस्तान सुन्नी फोर्स ने की। तमाम उलमाए कराम ने माह रबीउल अव्वल के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि माह रबीउल अव्वल हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का महीना है। इसमें महफिल मिलाद का इनकाद ज़ौक़ शौक़ से किया जाएगा और 12 रबीउल अव्वल को तमाम आशिकाने रसूल दरूद सलाम पढ़ते हुए जुलूस में शिरकत करेंगे। इश्क़ मुस्तफ़ा ही असल ज़िंदगी है। हम रबीउल अव्वल के महीने में हर घर में महफिल सजाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान सुन्नी फोर्स के सदर इकबाल सुन्नी ने कहा कि हमारा हर कारकुन उलमा कराम की इज्जत करेगा और उलमा कराम को अपने सर का ताज समझेगा। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और हजूर की महफिल सजाते रहेंगे। अकीदा खत्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नबूस रसालत के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह जज्बा अतात रसूल कामयाबी का सरचश्मा है। पैगाम रसालत को समझने और अदब रसालत को अपनाने की जरूरत है। उम्मत मुसलमान दामने मुस्तफा को किप्रो में जीएसटी और पीएसटी पास नौजवानों ने ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट में। किप्रो में भी जीएसटी और पीएसटी उम्मीदवारों का ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। इस मौके पर एहतजाज की क़यादत आमिर राणा, मुमताज राजड़, यूनुस खान, अब्दुल सत्तार, शहजाद मलक, शोएब, जयराम और देगर ने की। इस मौके पर हाथों में बैनर उठाए हुए थे और सख्त नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाज के बाद अवामी मीडिया ग्रुप ऑफिस में राणा आमिर और मुमताज राजड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारा IBA ने 2021 के अंदर एक टेस्ट लिया था जिसको हम लोगों ने क्वालिफाइड किया
और उसमें कुछ लोग जो थे वो स्टिल जो है वो वेटिंग के अंदर रह गए, जिसमें से अभी भी हम तकरीबन 50 से 60 लोग वेटिंग में हैं, जो आज उसमें से तकरीबन कुछ लोगों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। हमें ऑर्डर नहीं दिए जा रहे, उसकी वजूहत ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो एजुकेशन की वज़ीर हैं उन्होंने उस पर जो है वो उसको फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ इस वजह से किया गया है कि जी हुकूमत अभी नहीं है, तो अभी निगरान वाला सेटअप है, इस वजह से हम ऑर्डर नहीं दे सकते। हालांकि ये प्रोसीजर जो भी है प्रोसेस है ये 2021 का है, अभी का नहीं है। तो इस वजह से हमारी ये है अपने डीओ से और जो एजुकेशन के जो भी वज़ीर हैं उनसे कि जी बराए मेहरबानी इसको जो है वो डिफ्रीज़ किया जाए, और जो भी लोग बेचारे परेशान हैं 2021 से इंतज़ार कर रहे हैं ऑर्डर्स का कि हमारे ऑर्डर्स हो जाएंगे, उनको जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स जो हैं वो दिए जाएँ। असांजो इहो मुतालबो आहे, असां केतिरो या वेटिंग कैंडिडेट 2021 जो टेस्ट पास कई आहे, उन जा उम्मीदवार असां तक़रीबन चौक ते ऐं प्रेस क्लब ते पूरा मन एहतजाज अॻु में कया आहिनि। असांजो एजुकेशन मिनिस्टर ऐं सेक्रेटरी एजुकेशन मिनिस्टर आहे, उन सां असां इहो ई मौक़ुफ़ आहे जेको असांजो हलंदड़ जेको प्रोसेस हो PST जो वेटिंग कैंडिडेट वारनि जो उहो हींअर पंहिंजो फ्रीज़ कयो वियो आहे। उन्हनि खे असांजो इहो मुतालबो आहे त उन्हनि खे फ्रीज़ कयो वञे ऐं असांजा जेके ऑर्डर आहिनि उनजी प्रोसेस हलायो वञे। जल्द से जल्द पास उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर दिए जाएं जिससे फैली हुई बेचैनी खत्म हो सके। कैमरामैन फजल मनानी के साथ अब्दुल रज़ाक राज। और नाजरीन आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद अली इमरान के नारोवाल से ट्रांसफर होने पर उनके एजाज में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अलविदाई तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद अली इमरान को शील्ड और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। नारंग मंडी हल्का PP 135 में काफ लीग के उम्मीदवार MP और सदर जिला शेखुपुरा चौधरी जावेद इकबाल गुराया ने समाजी रहनुमा चौधरी नईम गुराया के ऑफिस का इफ्तिताह किया। तफसीलात जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट। नारंग मंडी हल्का PP 135 की नामवर सियासी व समाजी शख्सियत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिला शेखपुरा के सदर उम्मीदवार MP चौधरी जावेद इकबाल गुराया ने मरूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी नईम गुराया के सोल सोसाइटी ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर चौधरी वारिस गुराया और दीगर अहम शख्सियात भी मौका पर मौजूद थी। चौधरी जावेद इकबाल गुराया की क़यादत में गोलियों का नाच भी करवाया गया और मज़हब मेहमानों की खातिर तवाज़ुन भी की गई, मिठाइयाँ तकसीम की गई और खैर बरकत के लिए एक खुसूसी दुआ की गई कि अल्लाह ताला खैर बरकत फरमाए। वाज़ेह है कि इस मौका पर चौधरी जावेद इकबाल गुराया के हक़ में नारे लगाए गए। फिजा चौधरी जावेद इकबाल गुराया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ताहिरी वेलफेयर हाला की जानिब से हुनरमंद नौजवानों के लिए प्रोग्राम के तहत खवातीन के लिए सिलाई सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अमजद राजपूत। ताहिरी वेलफेयर हाला न्यू की जानिब से हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत खवातीन के लिए सिलाई सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमायतों के लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक मेहमानों ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ये बहुत अजीम काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की मदद में उस वक्त तक रहते हैं जब तक कि वो बंदों की मदद में रहता है। इस वक्त हमारे जो मुल्की हालात हैं, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, वहाँ गरीब और मिस्कीन ख़ास तौर पर ख़वातीन जिनकी इज़्ज़त और रोटी का भी मसला हो तो उनका बहुत बड़ा मसला है। ये वैसे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको ये अदा करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों की भी जिम्मेदारी लगाई है, तो उसके तहत ताहिरी वेलफेयर ने ये काम शुरू किया है। हम इन तमाम अहबाब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इज़्ज़त व एहतराम के साथ ख़वातीन के लिए पर्दे के अंदर एक इंतज़ाम किया है, जिसके ज़रिए से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो अपने आप का और अपने बच्चों का सही तौर पर मुस्तकबिल संवार सकेंगी। उन्होंने काम ये शुरू किया कि जो नौजवान और ख़ास तौर पर जो लेडीज़ है उनके हवाले से उनको जो है एक उनको हुनर देना, उनको स्किल देना, सिलाई मशीन के हवाले से उन्होंने ये काम शुरू किया है। उसके हवाले से उन्होंने इब्तिदा किया है कि ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, और इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन जो है वो 72 जो है लेडीज़ ने इस काम के लिए अप्लाई किया है कि हमें जो है ये सहूलत दी जाए, हमें ये हुनर जो है सिखाया जाए। और माशाल्लाह
जो ताहिरी वेलफेयर हालानुमा की तरफ से जो है उन सबको ये सहूलतें दे रहे हैं। प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों का यही कहना था कि ताहिरी वेलफेयर का मिशन है कि हमारे माशरे की औरत भी अपना बाइज्जत रोजगार कर सके। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखतूम सैयद उस्मान आतिफ ने अपने एक जारी करदा बयान में कहा कि काफी नायाब और गैर शाया शुदा मुसवदा जात कई सालों से सिंधी अदबी बोर्ड के पास शाया होने के लिए पड़े हैं, जिन्हें शाया करके उन्हें मंजर आम पढ़ाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट की अशद जरूरत है। मखतूम सईदुज़्ज़मा आतिफ ने कहा कि हैदराबाद में सिंधी अदबी बोर्ड के कुतुबखाने के ज़बो-हाल अमारत और कुतुबखाना के जदीद दौर के तकाज़ात के मुताबिक असर नो तामीर भी वक्त का अहम तकाजा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी जारी स्कीमों में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, जदीद लाइब्रेरी शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलर हॉस्टल के नाम से स्कीमों का संग बुनियाद रखा जा चुका है, जिनकी तकमील के लिए हुकूमत की सरपरस्ती ज़रूरी है। मेंबर वजीर आला पंजाब इंस्पेक्शन टीम राय मंसूर नासिर की CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर से उनके ऑफिस में मुलाकात। तफसीलात जानेंगे कामरान अली से। मेंबर वजीर आला पंजाब राय मंसूर नासिर की CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर से मुलाकात। राय मंसूर नासिर ने शाहिद कादर को अपनी नई पब्लिकेशन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। इस मौके पर राय मंसूर नासिर ने CEO मॉडल बाजार को अपनी नई तख्लीक बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। सीरत नबी किताब के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए राय मंसूर नासिर ने बताया कि इस किताब के जरिए हम कैसे सीरत नबवी की रोशनी में अपने किरदार की तश्कील कर सकते हैं। इस किताब में 99 मौजू हैं जो रोजमर्रा जिंदगी को सीरत नबी की रोशनी में गुजारने पर मबनी है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर ने सीरत नबी जैसी शाहकार तख्लीक बराए राय मंसूर नासिर की काविश को बेहद सराहा। शाहिद कादर ने सीरत नबी जैसी शाहकार तहलीक से इस्तिफादा हासिल करने के लिए अपनी टीम को बगौर मुताला करने की तलकीन की। नाज़रीन, आपको बताएं कि चौधरी एतजाज अहसन और लतीफ खोसा ने वकला तहरीक का ऐलान कर दिया है। वकला तहरीक का आगाज पेशावर से होगा। एतजाज अहसन का कहना है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए अदलिया और वकला बरादरी का बहुत अहम किरदार है। सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। हूँ मैं मजदूर वकील हूँ। मैं अब काले कोट की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं आवाम की बात करता हूँ। मैं आइन की जो है बहाली की बात करता हूँ। अदालत की जो है इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आवाम को खुदारा जमहूर को जमहूर का हक दो। आप उसको हक के वोट नहीं दे रहे, आप उसको हक के जो है असेंबली और पार्लियामेंट बनाने का नहीं दे रहे, आप उसको हक के हुक्मरानी नहीं दे रहे, तो फिर रियासत तो ख़त्म हो जाती है अगर आवाम को आप ये हकूक़ नहीं देते। मैंने तो किसी के कोई मुक्का वुक्का नहीं मारा और ना कहीं जाके हमला किया है भाई। अगर ज़बान के आप समझते हो ये बातें करना जो है आइन में और इजहार राय में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल ने भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल ने भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। महंगी सब्जी, फलों, बिजली, चीनी, आटे के बोझ तले दबी परेशान हाल आवाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे पर बिलबिला उठी। लेते हैं, सवारी भी नहीं है, बेरोजगारी हद से ज्यादा हो गई है, क्या करें, बच्चे भी तो पालने हैं। बहरहाल पेट्रोल की वजह से बहुत परेशान है हम। आवाम को जलील कर दिया हुक्मरानों ने। 300 रुपया लीटर हो गया। आवाम क्या करे, अपना खाना खाए, क्या करे, क्या कमाए। बिल वो नहीं अदा है, मर गए हैं। ये हुक्मरानों का बेड़ा गर्क हो गया। इन्हें तो तंग आए पे गुरबत मारे की करिए, फिर मौत न मरी और की करिए। एक बंदे की 1000 रुपया के अपना दिहाड़ी है, तो वो दिहाड़ी में क्या करेगा, तेल लाएगा, चीनी पेट्रोल पुराएगा, वो क्या करेगा, घर का किराया कहाँ से देगा। मैं तो ये कहूँगा कि जी वैसे ही हमें अपने हाथ से मार दें,
ये ऐसे ना घुट घुट के मारे हमें, सही जो बात है। गरीब आदमी को ये वैसे किसी कटहरे में जो इंसान है, क्या नाम है, किसी बोरी में बंद करके मार दें, ठीक है, ऐसे भूखी मारना मारे। ये हमें आवाम को भूखी मार रहे हैं जो इंसान है, जिससे वो सिर्फ गरीब आदमी को फर्क पड़ रहा है। जो इंसान है, जो कारोबारी है, जो वो ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं, गरीब आदमी जो इंसान है वो मरता जा रहा है। डेली रोजाना देखें, अखबार देखें, कोई ना कोई खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग आम रूटीन में जो इंसान है वो। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को गरीब आवाम की जेब पर डाका, जुल्म, मुआशी कत्ल और नाकाबिले बर्दाश्त बोझ करार देते हुए हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। निगरान सूबाई वजीर बल्दियात मोहम्मद मुबीन जमानी की DA लेबर यूनियन के तहत सिविक सेंटर में चहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के प्रोग्राम यौम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यौम हुसैन के हवाले से क्या कहो? देखिए, यौम हुसैन सबके लिए एक सब्र का पैगाम देता है, सच्चाई का पैगाम देता है, इंसाफ का पैगाम देता है। और हमारे उलमा कराम ने इतना कहा है, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हुसैन की तलकीन करें, उसकी रवायात को बरकरार रखें। आगे नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब के सदर आसम चौधरी ने सहाफियों को खुशखबरी सुना दी। जिन सहाफियों को 2018 में B ब्लॉक में प्लॉट अलॉट किए गए थे, सदर लाहौर प्रेस क्लब आसम चौधरी का कहना था कि अब B ब्लॉक में अलॉट शुदा प्लॉट पर सहाफी तामीराती काम का आगाज कर सकेंगे। B ब्लॉक के प्लॉट पर तामीराती कामों के लिए पंजाब हुकूमत, लाहौर प्रेस क्लब और पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन सहाफियों के शाना बशाना खड़े हैं। सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी का मजीद कहना था कि तामीराती कामों में दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशा है। तमाम सहाफियों को अलाट शुदा प्लॉट पर घर बनाने में इस गोल्डन वक्त का फायदा उठाना चाहिए ताकि तमाम सहाफी अब अपने प्लॉट्स पर घर बनाकर जिंदगी गुजार सके। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।